Joran Mamdani, remember the name. This is a 34-year-old Indian American who has been elected as the youngest mayor in over a century in New York City, the capitalist hub of capitalist America. So, this has made huge headlines around the world, and obviously, the interest of Indians, particularly the UPSC aspirants, obviously has arisen as well. So, in this lecture, I'm going to talk about today the comparison of the Indian mayor and the American mayor, the historical background, the variety of parameters like tenure, like accountability and powers, and their control over city administration, and see what we can learn from American system. Welcome to Shriram IAS. माय नेम इज सौरभ, आई एम द करंट अफेयर्स फैकल्टी हियर, और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो कि न्यूज साइकिल्स को डोमिनेट कर रहा है. बिकॉज जोहरान ममदानी had scripted history, a state lawmaker and a democratic socialist in a capitalist hub of the world called New York City, has been elected, and he's also the first Muslim mayor in city's history. So what does basically the mayor word comes from? What is the origin of the word? It's very important to understand the etymology of the word itself. So mayor जो शब्द है वो निकल के आ रहा है moyer, MOIOR शब्द, जो कि लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, which simply means superior official. By the time of 13th century, this word has entered into the Middle English. At that point of time, it used to denote basically the city magistrate, the magistrate or the chief magistrate of the city. In contemporary times, mayor simply means the head, the administrative head of the city. सो मेयर जो शब्द है उसका जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है वो इस डायरेक्शन से हमारे सामने निकल के आया. एंड राइट नाउ इन अमेरिका there are primarily two types of system all around the world in democratic world. These are the two primary system जिनके थ्रू मेयर्स को हम एनालाइज कर सकते हैं. एक होता है वीक मेयर सिस्टम और एक होता है स्ट्रॉन्ग मेयर सिस्टम. तो वीक मेयर सिस्टम में सिटी और टाउन काउंसिल इंक्लूडिंग द मेयर in a combined way they exercise all the powers. Strong mayor system में the mayor obviously will act as a executive body और जो city council है वो legislative wing की तरह काम करती है. Weak mayor में no formal authority is being given to the mayor outside of the council. यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इनके पास full एक authority होती है. Mayor weak system में they exercise influence by powers of persuasion और influence. यहाँ पे they can appoint or dismiss officials. Here they cannot utilize veto power over the legislative decisions of the council. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. They can exercise a veto और relatively little executive power होती है मेयर्स के पास. यहाँ पे ज्यादा पावर्स होती हैं और मोस्टली ये सेरेमोनियल सिस्टम होता है. तो अमेरिका और इंडिया का अगर हम कंपैरिजन करें, रफली 36% इंडिया की पॉपुलेशन सिटीज में रहती है. अमेरिका की लगभग 83% पॉपुलेशन सिटीज में रहती है. सो द गैप इज सो इमेंस. अमेरिका इज डीपली अर्बनाइज्ड. अगर इंडिया में लगभग 4000 स्टेट्यूटरी टाउन्स हैं तो अमेरिका में इनका नंबर लगभग 20,000 बताया जाता है. और अगर हम कंपेयर करें दोनों कंट्रीज को, उनकी पर कैपिटा इनकम को, उनकी कंबाइंड जीडीपी को, ऑब्वियसली द डिफरेंस इज वेरी स्टार्क. बट बोथ ऑफ इंडिया एंड अमेरिका वेर वंस कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश. तो कुछ इंस्टीट्यूशंस, जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, वो यहाँ पे सिमिलर है. तो इसीलिए जो कंपैरिजन है कंप्लीटली वैलिड है. इंडिया के अंदर जो हमारा सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, इट इज बीइंग डिराइव्ड थ्रू द प्राइमरली इन कंटेम्पररी टाइम्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. तो पहला जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, it was set up in India at Madras in 1687. The history tells us that there are many significant events when it comes to city planning and administration, जैसे Mayo's resolution, उसके अलावा the famous resolution by Lord Lippon, then in 1882, and then the Government of India Act 1919, Government of India Act 1931, and then historical evolution has taken place to 73rd, 74th Constitutional Amendment Act in 1993.
तो इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है उसमें हम 3 लेयर्स की बात करते हैं गवर्नमेंट की, एक यूनियन लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और तीसरा म्युनिसिपल लेवल पे, और ग्राम इन विलेज एरिया यू हैव पंचायती राज institutions. All three of them are now mentioned in Indian constitution. However, in America, things are different. In America, there is no concept of the third tier of government in US Constitution itself. अमेरिका के अंदर जो कि कंप्लीटली फेडरल स्ट्रक्चर है, वहां यूनियन का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टेट लेवल पे भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। तो उनके संविधान के अंदर ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि सिटी काउंसिल्स की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। हर स्टेट ने अपने अपने रूल्स और लॉज फॉर्मुलेट किए हुए हैं, लेकिन हिस्टोरिकल वहां जो एवोल्यूशन हुआ है वो हुआ है होम रूल एज ए प्रिंसिपल के कॉन्टेक्स्ट में। होम रूल मींस that the people will be governed by their own set of rules, their own set of policies. They can rule or govern themselves. तो भारत के अंदर जो स्वराज्य की परिकल्पना रही वो हमेशा से नेशनल लेवल के ऊपर रही। होम रूल लीग भी इंडिया में कभी एक जमाने में इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में स्टैब्लिश की गई, बट उसका जो ओरिएंटेशन था वो हमेशा नेशनल लेवल पे था। यहाँ पे स्टेट लेवल पे और सिटी के लेवल पे भी ये कॉन्सेप्ट जो है काफी रेलेवेंट है। सो होम रूल इज बेसिकली द प्रिंसिपल थ्रू विच देयर आर मेनी सिटीज और टाउन्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स जहां पे स्ट्रॉन्ग मेयर सिस्टम है। लगभग 30 से 35% सिटीज के अंदर स्ट्रॉन्ग मेयर सिस्टम है, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, लॉस एंजलिस हो गया। बहुत सारे सिटीज में जो मेयर इन काउंसिल का कॉन्सेप्ट है वो डोमिनेट करता है। तो एक काउंसिल मैनेजर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे होती है। जो सिटी के वोटर्स होते हैं वो ही सिटी काउंसिल को चुनते हैं और वो ही मेयर को चुनते हैं, वोट करते हैं। मेयर इज ए मेंबर ऑफ द सिटी काउंसिल। उसके बाद सिटी काउंसिल विल अपॉइंट ए सिटी मैनेजर। दिस इज ऑल्सो ए इनोवेटिव सेटअप। स्ट्रॉन्ग मेयर और वीक मेयर के आप इसको कह सकते हैं मिडिल पाथ यहां पे लेने की कोशिश की गई, और एक सिटी मैनेजर को अपॉइंट करती है सिटी काउंसिल विच विल हैंडल ऑल द डिपार्टमेंट्स, पुलिस, फायर, क्लर्क, पब्लिक वर्क्स, स्ट्रीट सैनिटेशन, हाइजीन एंड व्हाट नॉट। इसके अलावा जो डोमिनेंट सिस्टम है वो है स्ट्रॉन्ग मेयर का। तो यहाँ सिटी वोटर्स विल इलेक्ट द सिटी काउंसिल जो कि एक लेजिस्लेटिव विंग होगी, और मेयर जो कि एक एग्जीक्यूटिव विंग होगी, और मेयर ही सिटी डिपार्टमेंट्स में सभी को अपॉइंट करेगा। ही कैन हायर एंड ही कैन फायर, he appoints staff, he basically have substantial executive powers. So न्यूयॉर्क के अंदर जो हुआ, ये जो इलेक्शन हुआ है जोहरान ममदानी का, that is why it's very significant because he will exercise genuine executive powers. That makes his position substantially powerful compared to the mayors that we have in Indian cities. तो इंडियन सिटीज के अंदर हमारे पास जो मेयर्स हैं उनकी तुलना में जोहरान ममदानी विल बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग मेयर। और जो कंपैरिजन है प्राइमरली मेयर का इलेक्शन अगर हम देखें तो अमेरिका में प्राइमरली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजंस होते हैं। इंडिया में बहुत जगहों पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, बहुत जगहों पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। सो हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक अलग लॉज हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। जो टेन्योर होता है ऑन एवरेज 4 साल का होता है, यहाँ पे 1 या 2 साल का भी होता है, कुछ जगहों पे 5 साल का भी होता है। अकाउंटेबिलिटी, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी है क्योंकि पीपल आर इलेक्टिंग, द वोटर्स आर इलेक्टिंग द मेयर डायरेक्टली। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इज मोस्टली टू स्टेट गवर्नमेंट। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, मेयर, सिटी काउंसिल और सिटी मैनेजर जो हमने डिस्कस किया मॉडल को, यहां पे मेयर और जो म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं दे एक्सरसाइज ह्यूज पावर। इंडिया में मेयर्स आर मोस्टली सेरेमोनियल इन नेचर। सेरेमोनियल उनका स्टेटस होता है। जो असली फैसले हैं वो एग्जीक्यूटिव पर्सन जो करता है वो एक आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अधिकारी होता है, जिसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर। ऑटोनॉमी स्ट्रांग होती है, होम रूल पावर्स है। इंडिया में ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविजन लाया गया है, लेकिन उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट्स को इतनी डिस्क्रेशन दे दी गई कि स्टेट गवर्नमेंट्स पावर ही नहीं देती हमारे मेयर्स को और बाकी जो काउंसिल हैं सिटीज के अंदर उनको। 74th अमेंडमेंट एक्ट हालांकि लाया गया था आफ्टर ए लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द लोकल सेटअप इन इंडिया, और 1992 24 अप्रैल 1993 को ये इंप्लीमेंट किया गया। बहुत बड़ा इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दी गई, ये जो पूरी स्कीम थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। बट इवन नाउ देयर आर सो मेनी इश्यूज विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन।
So this is basically the Brihan Mumbai Municipal Corporation, BMC, which has a budget of roughly $9 billion annually. It controls a population of roughly 1.25 crore in मुंबई, मुंबई जो कि भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है। न्यूयॉर्क से अगर हम कंपेयर करें, न्यूयॉर्क के पास जो बजट है वो $115 बिलियन का है। हालांकि 85 लाख की जनसंख्या उनके अंडर आती है, बट जो लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी और पावर्स यहाँ पे हैं, फंडामेंटल यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन और अमेरिकन सिस्टम दिखाई देता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया के अंदर मेयर्स बहुत ही वीक हैं। क्यों वीक है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स उनको पावर ही नहीं देना चाहती। इंडिया हैज अ टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन। The state governments like Maharashtra state government don't want to give powers to the BMC. They want to control the revenue and political control. They also, in a way, appoints the executive authorities, जैसे म्युनिसिपल कमिश्नर हो गए जो कि IAS होते हैं और जो कि रिपोर्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर को। तो डायरेक्टली उनका कंट्रोल होता है जो म्युनिसिपल गवर्नेंस है उसके अंदर। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड स्टाफ कंट्रोल, दीज म्युनिसिपल अथॉरिटीज दे डू नॉट अपॉइंट देयर स्टाफ and they cannot fire their staff in most of the cases. Police in any case directly reports to the state government. और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, फायर डिपार्टमेंट है, सैनिटेशन हाइजीन के डिपार्टमेंट्स हैं, सारे ये स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा हैंडल होते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल यहाँ पे इंटरफेरेंस भी ज्यादा होता है और पब्लिक अवेयरनेस भी लिमिटेड है। पीपल जस्ट वोट एंड देन दे फॉरगेट। These are the primary reasons why the Indian mayors are so weak and why we have all set of issues in urban governance domain. सड़कें खराब हैं, बिजली की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, सैनिटेशन हाइजीन के चैलेंजेस हैं, क्राइम कंट्रोल के चैलेंजेस हैं। ये सारे जो विषय हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हैंडल ना होके लोकल लेवल पे होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट डज नॉट हैपन in India. And if we compare further, if we look at it into it in detail, just look at the parameters. तो मेयर का इलेक्शन, उसकी एक्सिक्यूटिव पावर, कंट्रोल ओवर स्टाफ, कंट्रोल ओवर बजट, कंट्रोल नहीं है स्टाफ के ऊपर कोई भी, ना वो अपॉइंट करते हैं, ना वो फायर कर सकते हैं, ना ही उनका कंट्रोल बजट के ऊपर है, कोई वीटो पावर नहीं है। टेन्योर उनका स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, बहुत जगहों पे 1 साल 2 साल का भी टेन्योर होता है। रिपोर्टिंग लाइन जो IAS होता है सीधे स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है और अकाउंटेबिलिटी भी इसीलिए इन अधिकारियों की राज्य सरकार की तरफ होती है, लोकल जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ नहीं होती। इन ए वे जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है सेल्फ गवर्नेंस का, क्लियरली वो यहाँ पे वायलेट होता है। तो डिस्पाइट द फैक्ट that we have added the provisions under 74th Constitutional Amendment Act in India's constitution, we still have the larger skeleton in place for the policy framework. लेकिन जब execution की बात आती है तो यहाँ पे state governments they intervene excessively, जिसकी वजह से city governance in India in shambles. That is the reason that all of us, including me and you, suffer from all sort of challenges related to cities. Our cities are filthy. Our cities are infested with crimes. Our cities have many challenges like housing, electricity, clean drinking water, policing. There are so many things. अगर हमारे पास डायरेक्ट इलेक्टेड कोई मेयर हो जो अकाउंटेबल हो जनता के लिए, तो वी कैन एक्सपेक्ट बेटर गवर्नेंस, वी कैन एक्सपेक्ट रिफॉर्म्स, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का जो एजेंडा है काफी वाइड होता है। दैट इज वाई इंडियन मेयर्स आर वीक एंड दैट इज वाई इंडिया में जो म्युनिसिपल चैलेंजेस हैं वो आने वाले समय में और बढ़ेंगे, क्योंकि जनसंख्या जो है अर्बन एरियाज की वो बढ़ती जा रही है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर कैन बी ए क्वेश्चन, जस्ट लुक एट दिस कंपैरिजन, दिस इज द मुंबई एंड दिस इज न्यूयॉर्क। यस, द साइज ऑफ द बिल्डिंग्स दे आर ए इंपॉर्टेंट बैरोमीटर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लेजिस्लेटिव पार्ट है, जो पॉलिसी वाला पार्ट है, दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट। एक सिटी ऐसी सिटी है जहां पे जो मेयर है वो डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं है जनता के लिए, और एक सिटी ऐसी है जहां अब जो मेयर हैं और पहले भी जो रहे हैं वो डायरेक्टली अकाउंटेबल हैं वहां की जनता की जो रोजमर्रे की जो डेली जो उनके इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए। So on the basis of this, there can be a question on GS paper 2. This could be the type of question that the examiner may ask, like, despite constitutional recognition through the 74th Amendment, Indian mayors remain largely ceremonial compared to their US counterparts. Critically examine
the need for empowering city mayors for the effective urban governance. So start writing. If you understand the topic and you got the gist of the lecture, I hope, sincerely hope, that you will be capable of writing a very good answer on this part. That's how, my friends, we in a way have a system which is in place, which basically constitutionally it is empowered, but functionally it is very very weak. तो फंक्शनैलिटी की अगर हम बात करें, फंड्स की अगर हम बात करें, इन सारे मैट्रिक्स में इंडियन सिटी गवर्नेंस basically is way too inferior compared to the US system. That's all. You can join me on my Telegram channel as well. Thank you for giving me your time. And if you like the content, share, like, and subscribe.